So let us now continue with what we had been discussing in the previous class. We are discussing chapter number 4 of history that has been titled as the Mughals. And I told you that the rule of Mughal Empire was started by a person whose name was Babur. Please, everybody, put your hands down. Put your hands down, everyone, very fast. And there are other students also who are joining in. So by the time they join in, I'll just repeat what I've discussed in the previous class, and then I'll connect it to what we are going to discuss today. So all the students who are still raising their hands, please put your hands down so that there are Siddhi, Yathar, Afam, and Akbar and Samrat. These people were raising their hands. Siddhi, Yathat, Afam, and Akbar are still raising their hands. All right. So only Siddhi is left. Siddhi, please put your hand down. And now let me continue with what we were discussing in the previous class. I told you I was talking about the Mughal rule in India, which started in 1526 with the arrival of Babur in India. And I told you in the previous class also that Babur came to India on the request of a person whose name was Daulat Khan Lodi. Here the name appears, Daulat Khan Lodi. Daulat Khan Lodi was actually the cousin brother of Ibrahim Lodi, who was the Sultan of Delhi at that time. So the Sultan of Delhi was Ibrahim Lodi, and Daulat Khan Lodi was the cousin of Ibrahim Lodi, and Daulat Khan Lodi was the governor of Punjab. So इब्राहिम लोदी ने अपने भाई दौलत खान लोदी को पंजाब का गवर्नर बना रखा था, वहां पे रूल कर रहे थे दौलत खान लोदी, बट ही वांटेड टू बिकम दी सुल्तान. वो चाहते थे दिस पर्सन इब्राहिम सॉरी दौलत खान लोदी वांटेड टू बिकम the Sultan of Delhi Sultanate, and he was hating Ibrahim Lodi, and that is why he came to know about Babur. Babur had become very successful and very famous in Afghanistan region. And why did he call him? सवाल यह है कि दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी को बुलाया क्यों? क्या दौलत खान लोदी को इस बात का डर नहीं था कि बाबर आकर के कब्जा कर लेंगे? दौलत खान लोदी को एक्चुअली क्या लगता था कि बाबर की जो अटैक करने का स्टाइल था वो कुछ ऐसा था. No, Vanchika, I sent you the question answers of chapter number 3. Yes. Yes, Vanchika. I have sent you question answers of chapter number 2 and 3 in history. And we are discussing chapter number 4 right now. So I'll send question answers of chapter 4 once we complete chapter number 4, the discussion of chapter number 4. And chapter number 1 and 2, I have sent you the question answers of chapter number 1 and 2 of civics. Chapter number 3 is still left, though we have discussed chapter number 3. So I'll be sending you question answers of chapter number 3 of civics in a short file. Okay, Praisha, fine, no issues. So I was telling you about Babur. बाबर अफगानिस्तान में रूल कर रहे थे, काबुल वाले एरिया में रूल कर रहे थे, और बाबर का रूल कुछ इस तरीके का होता था कि बाबर अटैक ऐसे करते थे कि कहीं पे उन्होंने अटैक किया, एकदम से अटैक करते थे, सामान उन्होंने लूटा और लूटने के बाद वापस अपने पास ले आए और अपने एरिया में अपने जहां पे रूल कर रहे हैं वहीं पे कंटिन्यू करते रहे रूल करना. यानी दूसरी टेरिटरी को इतना ऑक्यूपाई नहीं करते थे, बल्कि अपनी ही टेरिटरी में वापस सामान ले आया करते थे जो दूसरी जगह से उन्होंने लूटा है. पहले हमेशा यही चला करता था कि राजा दूसरे राजा के ऊपर हमला करते थे और फिर वहां पे हमला करने के बाद उनके किले में जितना भी खजाना होता था उस खजाने को लूट कर अपने पास ले आया करते थे, या फिर उस किले के ऊपर कब्जा तो करते ही थे अपना, साथ ही साथ में उस खजाने के ऊपर भी कब्जा करते थे. तो बेसिकली पहले जो हमले हुआ करते थे उसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव जो होता था वो दो होते थे. एक होता था जमीन के ऊपर कब्जा और दूसरा होता था दुश्मन राजा के खजाने के ऊपर कब्जा. लेकिन बाबर का स्टाइल ये था कि बाबर कभी भी जमीन पे कब्जा नहीं कर रहे थे. बाबर ने जमीन पे कब्जा नहीं किया था, बल्कि दूसरों के खजाने के ऊपर कब्जा करते थे और वापस अपनी टेरिटरी में आ जाया करते थे. सो दौलत खान लोदी को ये लगा, दौलत खान लोदी ने सोचा कि मैं बाबर को बुला लेता हूँ, और बाबर बहुत पावरफुल हो चुके थे तब तक. सो इन्होंने सोचा मैं बाबर को बुला लेता हूँ. बाबर वैसे भी अफगानिस्तान के रहने वाले आदमी है, इंडिया में तो रहेंगे नहीं, उनको बुलाता हूँ, इब्राहिम लोदी यानी अपने भाई के ऊपर हमला करवाता हूँ, इब्राहिम लोदी को हरवाता हूँ और हरवाने के बाद अपने आप मैं राजा बन जाऊंगा और बाबर को उनके हिस्से का जो भी ये खजाना होगा वो मैं उनको दे दूंगा. इस तरीके से बाबर भी खुश, मैं भी खुश, और मैं दिल्ली सुल्तान का राजा बन जाऊंगा. शगुन, आई थिंक दैट वाज मिस्टेकनली रिटन बिकॉज गयासुद्दीन होना चाहिए. आप सही कह रही हैं, गयासुद्दीन बलबन होना चाहिए. शगुन इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 कि सर वो गयासुद्दीन बलबन होना चाहिए, नसरुद्दीन बलबन नहीं होना चाहिए. बिल्कुल सही कहा आपने, गयासुद्दीन ही होना चाहिए. और आंसर में जो मैंने ब्लड एंड आयरन लिखवाया है वो पॉलिसी ही गयासुद्दीन बलबन की थी.
तो गलती से उन्होंने नसरुद्दीन बलबन लिख दिया है, लेकिन मैंने उसको चेंज इसलिए नहीं किया, क्या हो सकता है कि आपको टेस्ट में नसरुद्दीन बलबन के नाम से ही सवाल पूछ लिया जाए, इस वजह से मैंने उसको चेंज नहीं किया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बलबन की पॉलिसी कौन सी थी, तो बलबन के पीछे कुछ भी लिखा हो, नसरुद्दीन बलबन लिखा हो या गयासुद्दीन बलबन लिखा हो, आपको लिखना है ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी थी। सत्यम का पूछना है कि सर फिर उस जमीन का क्या होता था जिस जमीन को बाबर ने हमला किया, कवर कर लिया, लेकिन उस जमीन के ऊपर उन्होंने कब्जा नहीं किया अपना, बल्कि सिर्फ वहां पे हराया वहां के राजा को। तो ऐसा होता था कि वहां पे कोई और राजा, वहां का जो इंपॉर्टेंट आसपास का राजा होता था, वो कब्जा कर लिया करता था। और इस स्ट्रैटेजी को कहा जाता था गोरिल्ला स्ट्रैटेजी। गोरिल्ला स्ट्रैटेजी आज भी यूज करी जाती है बहुत हद तक इंडिया में। अगर आपने नक्सल्स के बारे में सुना है, नक्सलवाद जो हम सुनते हैं, नक्सली हमले, तो नक्सली हमले कुछ इस तरीके से होते हैं कि जंगलों में रहते हैं वो लोग, वो आते हैं जंगलों से निकल के एकदम से हमला करते हैं, सब सामान लूटते हैं और लूटने के बाद वापस ले जाते हैं अपने साथ। इसको गोरिल्ला वॉर कहा जाता है। सो एक्चुअली बाबर की जो स्ट्रैटेजी थी वो गोरिल्ला वाली थी कि जंगलों में छुप जाते थे और एकदम से निकल के आते थे, जब दुश्मन सेना को खबर भी नहीं होती थी, चारों तरफ से हमला करते थे, लूटते थे और वापस अपने साथ ले जाया करते थे। जितना भी खजाना वगैरह होता था, ये सारी चीजें। तो यही उम्मीद थी हुमायूं की, लेकिन ऐसा, सॉरी, यही उम्मीद थी दौलत खान लोधी की, मगर ऐसा हुआ नहीं। जब बाबर ने ऑलरेडी बहुत सारी बातें इंडिया के बारे में सुन रखी थी, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में सुन रखी थी, इंडिया की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने सुन रखी थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा है कि अगर दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया है तो जाएंगे और हमला भी करेंगे और देखा जाएगा जीतने के बाद। तो बाबर इंडिया आते हैं, अपनी फौज को लेकर हमला करते हैं, और हमला करने के बाद इब्राहिम लोधी को बैटल ऑफ पानीपत में, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत एक जगह है हरियाणा में, वहां पे सारे युद्ध हुआ करते थे, बैटल्स हुआ करते थे। सो बैटल ऑफ पानीपत उसे कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वहां पे पानीपत में वो बैटल हुई थी। सो खैर, पानीपत में जो बैटल हुई थी वो फर्स्ट बैटल थी। पानीपत में 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़ी गई हैं, जिसमें से पहली बैटल ये हुई थी इन द ईयर 1526। 1526 में पहली बैटल होती है, बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर हमला कर देते हैं इब्राहिम लोधी के ऊपर। इब्राहिम लोधी मारे जाते हैं और बाबर बन जाते हैं वहां के नए राजा, और अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं आगरा में। यानी अब दिल्ली, यहां से आप इस बात को समझना कि दिल्ली सल्तनत तक सारी जो पावर थी, जब तक दिल्ली सल्तनत के अलग अलग रूलर्स का रूल रहा तब तक दिल्ली पावरफुल रही। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब आगरा पावरफुल बनने वाली है, क्योंकि बाबर जो है वो आगरा को ज्यादा एडमायर करेंगे और आगरा में अपना सेंटर बनाएंगे, आगरा में अपनी कैपिटल बना लेंगे। बाबर आए, बाबर आने के बाद, यस आरना, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग। बाबर आते हैं, बाबर आने के बाद 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं और अपने आप राजा बन जाते हैं और मुगल सल्तनत की, मुगल रूल की स्थापना शुरू कर देते हैं। और इस तरीके से मुगल रूल इंडिया के अंदर शुरू हो जाता है। अब बाबर का रूल इंडिया में सिर्फ 4 साल तक रहा। बाबर, आप देखेंगे 1526 से लेके 1530 तक सिर्फ 4 साल तक रूल रहा, और उन चारों सालों में बाबर ने अलग अलग हर साल एक ना एक इंपॉर्टेंट लड़ी। जैसे मेवाड़ के राजा राणा संगा को हराया उन्होंने, फिर जिसे बैटल ऑफ खानवा कहा जाता है। सो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुई, 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुई, और फिर उसके बाद उन्होंने 2-3 और लड़ाइयां, हर साल उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे उन्होंने बैटल ऑफ खानवा के बाद उन्होंने बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी, जो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक नाम दिखेगा, यहाँ पे मदनी राय चंदेरी। तो मदनी राय चंदेरी के साथ उन्होंने बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी, फिर उसके बाद उन्होंने बैटल ऑफ घाघरा लड़ी, और इस तरीके से, और इससे पहले जो लड़ी थी उन्होंने बैटल ऑफ खानवा। सो बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा, इस तरीके से 4 साल में 4 बैटल्स लड़ते हैं, अलग अलग जगहों पर रूल कर लेते हैं, और रूल करने के बाद उनकी जो एम्पायर है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो वापस चलते हैं, शेयर स्क्रीन करते हैं, और ये आ गया यहाँ पे। ये कुछ इस तरीके से दिखती है कि गजनी से शुरुआत होती है, काबुल के रास्ते ये सब जगहों पर अपना कब्जा करते हुए आते हैं, आने के बाद दिल्ली के ऊपर हमला करते हैं, पानीपत में लड़ाई चलती है 1526 में, फिर दिल्ली के ऊपर कब्जा करते हैं, फिर आगरा के ऊपर कब्जा करते हैं, और फिर ये खानवा और घाघरा, चंदेरी, अगर आप, तो इन सारी जगहों पर, इन 4-5 जगहों पर वो रूल करते हैं। और इस तरीके से 1530 तक आते आते मुगल एम्पायर कुछ इस तरीके से दिख रही होती है। अगर आप लोगों को ये मैप नजर आ रहा है तो जितना ग्रीन में है वो एक्चुअली मुगल एम्पायर है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमने तो सुना है कि मुगल एम्पायर पूरे इंडिया के ऊपर छाई हुई थी, यहाँ पे तो आपने सिर्फ मुझे इतनी जरा सी मुगल एम्पायर दिखाई है। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि मुगल एम्पायर पूरी की पूरी एक बार में पूरा इंडिया मुगल एम्पायर के अंडर में नहीं आया था।
बल्कि पहले बाबर आए, बाबर ने इतने एरिया को कवर किया, इतने एरिया को कवर करने के बाद फिर उनके बेटे आएंगे हुमायूं, फिर अकबर आएंगे, फिर जहांगीर आएंगे, फिर शाहजहां आएंगे और फिर औरंगजेब आएंगे। और जो औरंगजेब हैं उनके टाइम तक आते आते इंडिया का मुगल एम्पायर का कब्जा लगभग पूरे इंडिया पे हो चुका था। लेकिन बाबर के टाइम पर सिर्फ इतनी ही एम्पायर उनके कब्जे में थी। मुझे उम्मीद है कि आपकी इतनी बात समझ में आई होगी। अगर आपके इतनी बात समझ में आई है तो मुझे यस लिख करके बताइए, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ आपको मेरी बात समझ में आई है। और इतनी देर में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी पढ़ लूं, क्योंकि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस वगैरह आए हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं इधर। सत्यम का पूछना है कि सर, यस सत्यम यू आर राइट। जो बैटल हुई थी वो अप्रैल में हुई थी, 1526 की अप्रैल में हुई थी। सत्यम यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सो 1526 की अप्रैल में बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसमें बैटल ऑफ पानीपत जीत जाते हैं बाबर, और बाबर का रूल इंडिया में स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अब आते हैं, ओके, यशस्वी का क्वेश्चन अच्छा है। यशस्वी ने कहा कि सर ऐसा क्यों नहीं है कि मुगल्स अपने आप को दिल्ली सल्तनत का पार्ट कहें। इसके दो मेजर रीजंस रहे यशस्वी। पहला रीजन ये था कि मुगल्स अपने आप को अफगानी कहा करते थे। बेसिकली वो ये मानते थे कि दे आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। वो अपने ये अलग मानते थे, वो कहते थे हम अलग ट्राइब के लोग हैं और दिल्ली दिल्ली के सुल्तान अलग ट्राइब के हैं, तो हम अपने आप को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं मानेंगे। और दूसरा रीजन ये था, अर्श बेटा अगर आपको आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही है तो आप वापस मीटिंग छोड़ के दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। दूसरी वजह ये थी यशस्वी और बाकी सारे स्टूडेंट्स, कि मुगल सल्तनत ने अपना, मुगल रूलर्स ने अपने आप को अलग इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने अपना बेस आगरा में बनाया था। आप मुझसे कह सकते हैं कि सर हमने तो सारा सब कुछ जितना भी सुना है मुगल्स के बारे में वो सब दिल्ली में सुना है। एक्चुअली दिल्ली में जो सेंटर बनना शुरू हुआ वो तब बना जब लाल किला दिल्ली दिल्ली में बना। और लाल किला दिल्ली में बनता है जब शाहजहां का रूल आता है। और शाहजहां का रूल बहुत समय के बाद आएगा, लगभग लगभग कोई 70-80 साल बाद जाकर के शाहजहां का रूल स्टार्ट होगा। और फिर शाहजहां ने कैपिटल को वापस दिल्ली शिफ्ट किया था, लाल किले का कंस्ट्रक्शन किया था। और इस वजह से फिर दिल्ली में दिल्ली में कैपिटल बनी, लेकिन उससे पहले आगरा में थी उनकी कैपिटल। और आगरा में कैपिटल होने की वजह से जाहिर सी बात है दिल्ली के सुल्तान दिल्ली में रहते थे। लेकिन अब दिल्ली के सुल्तानों को मार दिया गया और इन लोगों ने अपनी कैपिटल आगरा में बनाई, जिस वजह से ये अपने आप को मुगल्स कहते थे। दो मेजर रीजंस थे, एक ये था कि अपने आप को अलग कास्ट का माना करते थे, अलग ट्राइब का माना करते थे, दिल्ली सल्तनत के किंग से अलग मानते थे अपने आप को ट्राइब के अनुसार। दूसरा, उन्होंने अपना अपनी कैपिटल भी अलग रखी थी। दिल्ली सल्तनत की कैपिटल दिल्ली थी, जबकि इनकी कैपिटल आगरा थी। अब आते हैं वापस यथार्थ की बात पे। यथार्थ ने कहा सर आई सीन द फोर्ट ऑफ औरंगजेब इन औरंगाबाद। यथार्थ कह रहे हैं सर मैंने औरंगाबाद में औरंगजेब का किला देखा है। यस यथार्थ, जब हम औरंगजेब की बात करेंगे तो औरंगजेब के किले की भी बातचीत करेंगे, आपने बिल्कुल सही कहा। अ, सृष्टि 6 क्लास की हैं, मुझे अभी पता चला है। तो सृष्टि बेटा आप 6 क्लास की हैं, और 6 की अभी क्लास नहीं चल रही है, 11 बजे क्लास होगी 6 की। तो अगर आपको प्रॉब्लम, अगर आप क्लास अटेंड करना है आपको, तो आप 6 क्लास वाली अटेंड करिएगा, और अभी आपकी जो क्लास चल रही है आप वो क्लास अटेंड कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी इंग्लिश की क्लास चल रही होगी, सो वहां जाके आप इंग्लिश की क्लास अटेंड कर लीजिए। यस यस आई नो देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6F। बेटा 6F के स्टूडेंट से ही कह रहा हूं मैं कि आप अपनी क्लास अटेंड कर लीजिए, आप गलत क्लास में आ गए हैं अभी। और ज्येष्ठ बेटा मैं आपको दोबारा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने रिपीट ही किया है जो मैंने पिछली बार किया था। अब मैं हुमायूं के ऊपर आगे बढ़ूंगा, आप इस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा। अब आते हैं वापस इस चैप्टर पे, अपनी बुक के ऊपर, और देखते हैं कि क्या है। बाबर का रूल रहा। बाबर बेटा आरना वीडियो स्टार्ट हो गई है आपकी। बाबर का रूल रहा। बाबर के रूल के बाद बाबर की 4 साल के अंदर डेथ हो जाती है। और जैसे ही बाबर की डेथ हो जाती है, अच्छा मैंने आपको ये वैसे बता रखा है कि हमें ये कैसे पता चलता है इतना कॉन्फिडेंटली कि दौलत खान लोधी ने ही बाबर को बुलाया था, हम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं? तो बाबर ने खुद अपनी किताब लिखी है जिसका नाम है तुजूक ए बाबरी। तुजूक ए बाबरी के अलावा इसको बाबरनामा भी कहा जाता है। सो तुजूक ए बाबरी या बाबरनामा जो है वो बाबर की अपनी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब इंसान अपनी बायोग्राफी खुद लिखता है।
सो बाबर ने अपनी बायोग्राफी जब लिखी और उसका नाम था तुजूक बाबरी, यानी कि बाबरनामा, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि मैं हिंदुस्तान आना चाहता था, पर हिंदुस्तान की तरफ, ये मेरा फोन बज रहा है बेटा, मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं जरा फोन रिसीव कर लूं। ऑल राइट, सो एम आई ऑडिबल नाउ? आई एम रियली सॉरी, मैं मेरे पास एक्चुअली मेरी मम्मी के ऑफिस से कॉल आ गया था, सो आई हैड टू गिव माय फोन टू माय मॉम। ऑल राइट, सो हम बात कर रहे थे तुजूक बाबरी की। ये किताब है जो बाबर बाबर ने खुद लिखी थी, और इसमें खुद बताया था कि मैं हिंदुस्तान आना तो चाहता था लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था, और तब दौलत खान लोधी ने, जो पंजाब का गवर्नर था, उसने मुझे इनवाइट किया, और इस वजह से मेरा इंडिया की तरफ आना हुआ। उसके बाद खैर बाबर का रूल खत्म हो जाता है, बाबर 4 साल ही रह पाते हैं, और 4 साल बाद बाबर की डेथ हो जाती है, और बाबर की डेथ के बाद हुमायूं का रूल शुरू होता है। अब हुमायूं के बारे में आज हम जल्दी से बातचीत कर लेते हैं कि हुमायूं की जिंदगी कैसी गुजरी। हुमायूं को मुगल सल्तनत का सबसे बदकिस्मत बादशाह कहा जाता है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। हुमायूं की वजह ये रही, यस ओके, सो हुमायूं की वजह ये रही कि हुमायूं जो थे वो बदकिस्मत बादशाह इसलिए थे क्योंकि जैसे ही हुमायूं राजा बने, तो हुआ ये कि हुमायूं के 3 भाई और थे, ठीक है। एक भाई का नाम था कामरान, दूसरे भाई का नाम था अस्करी, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं अस्करी, इसको अस्कारी भी कहते हैं कुछ लोग, और थे हिंदल। ये 3 भाई थे। ये तीनों भाई हुमायूं के लिए धोखेबाज साबित हुए। धोखेबाज क्यों? क्योंकि हमेशा जब जब जरूरत पड़ी तब तब इन्होंने हुमायूं के साथ धोखा किया, और दूसरे राजाओं के साथ मिलकर उन्होंने हुमायूं को हराने की कोशिश करी। एक वजह ये रही कि हुमायूं क्यों बदकिस्मत रहे, क्योंकि अपने सगे, उनके अपने ही भाइयों ने उनके साथ धोखा करने की कोशिश करी, कई बार धोखा किया। जब बाबर की डेथ हुई थी तो बाबर ने हुमायूं से वादा लिया था कि तुम अपने भाइयों के ऊपर कभी भी हथियार नहीं उठाओगे, यानी तुम कभी भी अपने भाइयों के ऊपर जुल्म नहीं करोगे। सो हुमायूं उस वादे से बंधे हुए थे। हुमायूं के साथ एक प्रॉब्लम और थी कि हुमायूं इमोशनली वीक थे। इमोशनली वीक होने का मतलब यह है कि वो अपने राजा होने के धर्म के हिसाब से नहीं सोचा करते थे ज्यादा, बल्कि अगर अपने रिश्तेदारों की बात आ जाती थी, अपने रिलेटिव्स की बात आ जाती थी, तो वो इमोशनल होकर ज्यादा सोचा करते थे। और इस वजह से बार बार इनके सारे भाइयों ने, जो इनके 3 भाई थे, इन्होंने लगातार हुमायूं को धोखा दिया, लेकिन हुमायूं ने धोखा खाते गए, हर बार माफ करते गए। आप अगर बार बार किसी को धोखा देने पर माफ करते चले जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आप अपने आप मुसीबत में फंस जाते हैं। वही सेम प्रॉब्लम हुई हुमायूं के साथ कि हुमायूं के सारे भाई उनके साथ धोखा करते रहे, और हुमायूं के साथ प्रॉब्लम हुई। दूसरा, हुमायूं की एक बहन थी, उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने भी हुमायूं के साथ धोखा दिया। सो अपने ही रिलेटिव्स ने हुमायूं को काफी धोखा दिया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हुमायूं का रूल, जो हुमायूं की जिंदगी राजा बनने के बाद 1530 में जब बाबर की डेथ होती है और हुमायूं अपने आप राजा बन जाते हैं, 1530 से लेके 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। सो 1530 से लेके 1556, लगभग 26 ईयर्स, इन 26 सालों में छोटी बड़ी लड़ाइयां अगर जोड़ ली जाएं तो हुमायूं ने लगभग 21 बैटल्स लड़ी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी किसी भी राजा के लिए, कि अगर वो अपनी पूरी उम्र 26 साल उसने राजा की तरह रहा, और 26 साल में उसने 21 बैटल्स लड़ी। तो 21 बैटल्स, हर बैटल में उनको कभी किसी में लड़ाई हो गई, अपने ही इंटरनल किसी ऑफिसर के साथ, कभी उनके भाई ने धोखा दिया, कभी उनके ब्रदर इन लॉ ने, यानी उनके बहन के हस्बैंड ने धोखा दिया। इस तरीके की प्रॉब्लम्स हुई, और साथ ही साथ हर बार जब लड़ाई होती है तो राजा का बहुत सारा पैसा उस लड़ाई में खर्च हो जाता है। तो 21 लड़ाई का मतलब है कि हर बार जब लड़ रहे थे तो उनके पास पैसा कितना कम हो चुका होगा, कितनी प्रॉब्लम हो चुकी होगी।
तीसरी बात, जब वो जीतने की कगार पे थे तो उसी समय पर उनकी आर्मी में मलेरिया और एक और बीमारी थी जो कि कम्युनिकेबल डिसीज थी, वो फैल गई। डिसीज फैलने की वजह से उनकी आर्मी बीमार पड़ने लगी और वो आर्मी के बहुत सारे लोग मारे गए उस बीमारी में। तो इस वजह से इनको बदकिस्मत कहा जाता है। ये बहुत सारे इसके पीछे रीजंस रहे। अब जो मेन रीजन है जिसकी वजह से बदकिस्मत कहा जाता है वो ये हुआ कि 1530 और 1540, अच्छा चलो वापस वहां पे चलते हैं जहां पे हमने उस मैप को देखा था, जहां पे बाबर अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के लिए छोड़ करके उनकी डेथ हो गई थी। सो ये बाबर की एम्पायर है। अब यहाँ पे ये जो बंगाल वाला एरिया है, बंगाल वाले एरिया में बाबर के ही नीचे एक राजा थे जिनको बाबर ने हरा दिया था और ये कहा था कि ठीक है अब आप हमारे नीचे काम करेंगे। तो बाबर के नीचे जो राजा थे वो बाबर की डेथ के बाद आजाद होना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी आजादी की जंग छेड़ रखी थी। इधर गुजरात वाली साइड में अलग अलग रूलर्स थे जो उनकी टेरिटरी जो थी वो उनकी बॉर्डर और मुगल्स की बॉर्डर एक दूसरे के करीब थी, यानी ये जो बॉर्डर थी करीब थी। सो गुजरात के रूलर्स थे, अफगान रूलर्स थे, गुजरात के रूलर्स और बंगाल के रूलर्स, ये दोनों लगातार हुमायूं को परेशान कर रहे थे। हुमायूं अंदर अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम्स के साथ तो जूझ ही रहे थे, साथ में कभी इधर से हमला होता था तो हुमायूं इधर भागते थे, फिर इधर जवाब देते थे, सिचुएशन कंट्रोल करते थे तो इधर से हमला हो जाता था गुजरात की तरफ से। सो वापस वो गुजरात के लिए ये जगह छोड़ते थे, वापस आते थे, यहाँ पे हमला करते थे। यहाँ पे इन्होंने जब एक बार अपना कब्जा कर लिया, कब्जा करा ही था, मालवा वाला एरिया इन्होंने जीता ही था, और जीत के वापस अब ये अपना सेटलमेंट यहाँ पे बना ही रहे थे कि वापस बंगाल वाले एरिया में हमला हो जाता है। जब वापस बंगाल वाले एरिया में हमला हो जाता है तो ये अपना सारा कुछ यहाँ से छोड़ते हैं, वापस बंगाल की तरफ जाते हैं। जब यहाँ जाते हैं तो जो जगह इन्होंने जीती थी वो सारी जगह पे गुजरात के रूलर वापस कब्जा कर लेते हैं और ये फिर उनसे छिन जाती है। जब ये यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे इनकी आर्मी को हो जाता है मलेरिया और एक और कोई कम्युनिकेबल डिसीज थी, वो बीमारी हो जाती है जिससे इनकी आर्मी खत्म होने लगती है। इनकी आर्मी जब वीक पड़ने लगती है तो वापस आने लगते हैं। जब ये वापस आने लगते हैं तो इनको इसी आर्मी का पावरफुल जो कमांडर था जिसका नाम था शेर शाह सूरी, वो रोक लेता है। रोकने के बाद वो दिल्ली में उनके साथ लड़ाई लड़ता है, जब सॉरी चौसा में उनके साथ लड़ाई लड़ता है। खैर उनकी लड़ाई होती है और जब लड़ाई होती है उनकी तो वो उस लड़ाई में हारते हैं बैटल ऑफ चौसा में, जो कि बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुई थी। इसको हम अभी वापस अपनी बुक में ही जाके देखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। इधर आ जाते हैं, अब आते हैं ऊपर की तरफ। देखिए, बहादुर शाह थे गुजरात के राजा। गुजरात के राजा को हराया, बहादुर शाह को हराया हुमायूं ने। लेकिन बहादुर शाह ने वापस उसके ऊपर कब्जा इसलिए कर लिया क्योंकि शेर शाह ने, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे शेर शाह ने वापस बंगाल वाले एरिया में हमला कर दिया था। जब शेर शाह ने हमला कर दिया तो हुमायूं शेर शाह से लड़ने के लिए गए तो बहादुर शाह ने अपनी जमीन के ऊपर वापस कब्जा कर लिया। अब आ जाते हैं शेर शाह के ऊपर। शेर शाह बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। शेरशाह के बारे में फिर हम और डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं, बस इतना समझ लीजिए कि शेरशाह बहुत ज्यादा पावरफुल थे। शेरशाह ने हमला किया हुमायूं के ऊपर पहली बार चौसा में, और उस बैटल का नाम, उस युद्ध का नाम हो गया बैटल ऑफ चौसा, जो कि 1539 में हुआ बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं हारते हैं, हारने के बाद भागते हैं वहां से अपनी जान बचा करके और कन्नौज पहुंच जाते हैं। कन्नौज में रहकर वो प्लानिंग करते हैं कि कैसे मैं अपनी आर्मी को इकट्ठा करूं, इकट्ठा करने के बाद मैं वापस शेरशाह सूरी के ऊपर हमला करूं। लेकिन कन्नौज में वो प्लान कर ही रहे होते हैं कि 1540 में, एक साल बाद, फिर से जो है वो शेरशाह सूरी खुद कन्नौज पहुंच जाते हैं और कन्नौज में हमला कर देते हैं। वहां पे फिर से बैटल होती है और फिर से हुमायूं हारते हैं। और उसके पीछे वजह रहती है उनके अपने सगे भाई कामरान। कामरान और हिंदल, ये दो लोग इनके साथ धोखा कर देते हैं, इनको आर्मी नहीं देते हैं, और जिसकी वजह से फिर ये कन्नौज छोड़ते हैं और कन्नौज छोड़ के वो भाग जाते हैं और काबुल चले जाते हैं। तो अब ये काबुल पहुंच जाते हैं, काबुल में भी इनकी लड़ाई हो जाती है, तो फिर ये और आगे बढ़ते हैं और ये ईरान पहुंच जाते हैं। फाइनली ये बहुत समय तक ईरान में रहते हैं और ईरान में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अब यहाँ पे ये तो चले गए, 1530 से लेके 1540 तक इनका रूल रहा। 1540 में इनको इंडिया छोड़ना पड़ गया। इंडिया जब इन्होंने छोड़ दिया और ये इंडिया के बाहर चले गए और ईरान में रहने लगे, तो अगले 15 साल तक इनको इंतजार करना पड़ा कि वापस इंडिया आए और इंडिया के ऊपर आकर के कब्जा करें। तो इन 15 सालों में किसका रूल रहा इंडिया के ऊपर? मुगल्स का रूल 15 साल के लिए खत्म हो गया था।
इस बात को बहुत क्लियरली समझ लीजिए सारे स्टूडेंट्स कि मुगल्स का रूल हुमायूं के आने के बाद 10 साल तक तो चला, 1540 तक, और 1540 के बाद शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया और हुमायूं को अपना ही हिंदुस्तान, यानी जो भी उन्होंने जहां जहां पे कब्जा किया था वो सारी जगह छोड़ के भागना पड़ा और वो ईरान चले गए। और इंडिया में शुरू हो गया रूल शेरशाह सूरी का, और शेरशाह सूरी की डायनेस्टी का नाम था सूर डायनेस्टी। लेकिन सूर डायनेस्टी ज्यादा समय तक चलती नहीं है, सिर्फ 15 साल चलती है और 15 साल में खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि शेरशाह सूरी बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है 5 साल के अंदर। और 5 साल बाद यानी 1555 1540 में, सॉरी, 1540 से लेके 1555 के बीच में सूर डायनेस्टी रहती है। 1540 में शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा के भेज देते हैं बाहर, ईरान भेज देते हैं, ईरान चले जाते हैं, इंडिया के बाहर चले जाते हैं, और शेरशाह सूरी का रूल शुरू हो जाता है 1540 में। 1540 से लेके 1545 तक 5 साल शेरशाह सूरी रूल करते हैं। 5 साल बाद एक लड़ाई चल रही होती है जिसमें अपनी आर्मी की तोप से वो उनकी डेथ हो जाती है, तोप का गोला उनके ऊपर लग जाता है और वो उनकी डेथ हो जाती है। 5 साल बाद उनके बेटे रूल करना शुरू करते हैं और 10 साल के अंदर उनके बेटों का रूल खत्म हो जाता है क्योंकि बहुत ही वीक होते हैं। अब शेरशाह सूरी का जो रूल रहा वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लेकिन मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, मैं उसको छोड़ रहा हूं। और मैं वापस चलता हूं कि 15 जब हुमायूं जा चुके थे इंडिया से 1540 में, और 15 साल तक बाहर बैठकर प्लान कर रहे थे कि किसी तरीके से मुझे सही मौका मिले तो मैं वापस इंडिया के ऊपर हमला करूं और मैं अपनी गद्दी आगरा के ऊपर जो मेरा अपना राज था, मैं उस राज को वापस स्थापित करूं। इसलिए हुमायूं 15 साल इंतजार करते हैं और फाइनली उनको 1555 में मौका मिलता है। 1555 में मौका मिलता है जब वो इंडिया आते हैं और वो वापस जो है वो इंडिया के ऊपर हमला करते हैं और 1555 में दिल्ली और आगरा के ऊपर वापस से कब्जा कर लेते हैं, और मुगल रूल जो 15 साल पहले खत्म हो चुका था वो वापस शुरू हो जाता है 1555 में। ओके, 1500 बात समझ में आई। 1540 में हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ता है। 15 साल तक हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं हुमायूं। 15 साल बाद वापस आते हैं, 1555 में हमला करते हैं और वापस से दिल्ली और आगरा के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और बन जाते हैं, और फिर से इंडिया में मुगल रूल शुरू हो जाते हैं 1555 में। लेकिन बदकिस्मत क्यों कहा जाता है इनको, उसका एक और उसके दो रीजंस और हैं। पहला रीजन, जब 15 साल वो हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं तो डर डर की ठोकरें खाते हैं। हर राजा से उनकी लड़ाई होती है, कोई उनको अपने यहाँ आने नहीं देता है, जहां जहां जाते हैं उनकी लड़ाई होती है। बहुत समय गरीबी में गुजारते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि उनके पास फौज भी बहुत कम होती है और उन रेगिस्तानों में भटक रहे होते हैं और उनका बेटा पैदा हो चुका होता है और उन्हें कोई उम्मीद नहीं होती है कि वो जिंदगी में कभी भी कुछ कर पाएंगे। और उन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि मेरी जिंदगी का सबसे लोवेस्ट पॉइंट वही था जब मैं रेगिस्तानों में भटकता फिरता था अपनी बीवी और बच्चों को लेकर, और मेरे पास कुछ चंद सिपाही थे जिनके साथ मैं आगे बढ़ता रहता था। मेरे पास पानी खत्म हो चुका था, घोड़ा मर चुका था। घोड़ा मरने की वजह से मैंने अपनी बीवी को अपने घोड़े पे बैठा दिया और अपने आप पैदल चलता हुआ जा रहा था। तो मैं कभी हिंदुस्तान का बादशाह होता था और कभी किसी रेगिस्तान में पैदल चल रहा था, बीवी और बच्चों को भूखा रखा हुआ था, और मेरे फौज के सिपाही बहुत ही कम थे जो कि प्यास और भूख से परेशान थे। लेकिन फाइनली उनको मौका मिलता है और 1555 में वो वापस इंडिया के ऊपर कब्जा करते हैं, दिल्ली के ऊपर कब्जा करते हैं, बेसिकली इंडिया के ऊपर तो नहीं, सिर्फ दिल्ली आगरा और आसपास के एरियाज के ऊपर ही, दिल्ली आगरा के वहां पे कब्जा करते हैं। अब उन्हें लगता है कि मेरी जिंदगी बेहतर हो गई, वापस से मैं मुगल बादशाह बन गया, लेकिन उसके 1 साल के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। तो फिर उनकी डेथ हो जाती है। दूसरी वजह कि क्यों हम हुमायूं बादशाह को सबसे बदकिस्मत बादशाह कहते हैं मुगल सल्तनत का, तो आपकी इतनी समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे अकबर के बारे में, लेकिन अकबर के बारे में मुझे लगता है बातचीत करने का अब टाइम बचा नहीं है। हमारी जब क्लास कल होगी तो हम अकबर के बारे में बातचीत करेंगे, और अकबर को मुगल बादशाहों में से ग्रेटेस्ट बादशाह कहा जाता है। और इंडिया में अगर किन्हीं राजाओं के नाम के आगे ग्रेट लगाया जाता है तो वो बहुत कम राजा हैं, और उसमें से एक राजा थे अकबर, जिनको कहा जाता था अकबर द ग्रेट। उनके बारे में हम बातचीत करेंगे अगली क्लास के बारे में बात। ओके, अभी आप लोगों के जो भी सवाल हैं वो सवाल सुन लेते हैं और उनके जवाब देने की कोशिश करता हूं मैं।
ओके, अब आता है सवाल, जल्दी जल्दी सवाल, 1 मिनट बचा है मेरे पास, मैं जवाब दे देता हूँ। यशस्वी का क्वेश्चन है, सर हाउ डिड बाबर डाई? बाबर की डेथ कैसे हुई थी? बाबर की डेथ हुई थी बेटा, बाबर को बीमारी हो गई थी, बीमारी की वजह से उनकी नेचुरल डेथ हुई थी, कोई किसी एक्सीडेंट में या वॉर में डेथ नहीं हुई थी। और इसी वजह से 1529 तक उन्होंने खुद बैटल लड़ी, लेकिन 1529 के बाद जब वो बीमार पड़ना शुरू हो गए तो उनके अंदर इतनी ताकत नहीं बची और उन्होंने बैटल लड़ना छोड़ दी। गौरी का क्वेश्चन है, सर व्हाट इज बैटल ऑफ चौसा? बैटल ऑफ चौसा बेटा लड़ा गया था, चौसा नाम की जगह पे लड़ा गया था, और लड़ाई हुई थी किस किस के बीच में? शेरशाह सूरी के बीच में और हुमायूं के बीच में। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में दो लड़ाइयां हुई। पहली लड़ाई थी बैटल ऑफ चौसा, जिसमें दोनों लड़ाइयों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। लेकिन पहली लड़ाई थी जिसमें हुमायूं तैयार नहीं थे, शेरशाह सूरी ने हमला किया और हुमायूं हारे, और हारने के बाद वो जान बचा करके भागे और कन्नौज चले गए। तो चौसा में लड़ाई पहली हुई थी और उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी। अब आते हैं वंशिका का क्वेश्चन है, सर वाज हुमायूं द बिगेस्ट अमंग्स देयर ब्रदर्स? यस वंशिका, हुमायूं सबसे बड़े थे अपने भाइयों में से, और जब तक हुमायूं ने वापस कब्जा किया हिंदुस्तान के ऊपर, उनके सारे भाई मारे जा चुके थे। इसके बारे में हम अगली क्लास में बातचीत करेंगे कि अकबर जो कि 13 साल की उम्र के थे, इतने छोटे थे, तो उनको राजा क्यों बनाया गया? हुमायूं के बाद हुमायूं के भाइयों को राजा क्यों नहीं बनाया गया, उसके बारे में हम बातचीत आगे करेंगे। ध्रुव, यस मैं सेंडिंग भेज दूंगा, सॉरी मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। Vanchika is saying, sir, and if yes, then why their younger brother want him to get defeated from other rulers? वंशिका, क्योंकि उनके भाई लालची थे, खासतौर से कामरान जो था वो ज्यादा लालची था, बचे हुए दो भाई जो थे वो एक वक्त को इतना सब